Hello, dear students. Today I am going to start preposition. So it will take, I think, 2-3 days time to cover the entire portion. But let me see how well you are able to comprehend. Actually, preposition में कोई rules नहीं होते हैं. You have to memorize one way or the other. So what actually I am trying to make it a bit simple, ताकि जो prepositions जो हैं उनके अंदर बीच के डिफरेंस क्लियर हो जाए, तो it becomes a little easier to memorize them. Okay, and after that I'll come to fixed preposition. Fixed preposition means a particular preposition is used with a particular word that cannot be changed. So let us begin with on upon. इन दोनों का हिंदी मीनिंग है पर. Okay, I hope it's clear to you. And sound wise and you can see it properly. तो on upon दोनों का हिंदी मीनिंग है पर. तो डिफरेंस क्या है कि on का यूज़ करते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, मतलब जिनमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, एंड upon का यूज़ करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए जिनमें सडन मूवमेंट हो रहा है, जैसे जंप, फॉल, थ्रो. Okay, so the flower vase is on the table, no movement, so on. I threw the ball upon the table. Throw is what? A sudden movement. So we are using upon. तो second वाले में you cannot use on. Okay, coming to in, into, same condition. हिंदी मीनिंग दोनों के हैं में, बट डिफरेंस ये है कि इन का यूज़ हम करते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए, इनटू का यूज़ होता है सडन मूवमेंट वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए. So example is, my science book is in the bookshelf. Our ball has fallen into the well. So in the second sentence you cannot use in, because fall into, that means a sudden movement. तो ये सारे आप वीडियो पॉज कर करके भी देख सकते हो और पूरे अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आई विल बी टीचिंग यू एलाबोरेटली एंड आफ्टर दैट I'll give you exercise based on all this. Okay, now third one, इसमें जितने prepositions ये time के लिए use होते हैं, on, in, at, within, by, till. Okay, separately I'll be discussing all of them. Until, unless, ये दो words जो हैं ये actually conjunctions हैं जो connector का काम करते हैं, words या sentences को join करते हैं, but ये preposition की तरह भी use होते हैं. तो I'll be discussing all of these. अब जैसे on time, in time, these are the phrases. On time means एन वक्त पर या at the right time. In time वक्त से थोड़ा सा पहले. Okay, at time ऐसा कोई phrase नहीं है. तो at a time is a phrase. in one go means उसका होता है एक बार में या एक प्रयास में. at a time या in one go means एक बार में या एक प्रयास में. अब in time और on time में let us discuss. So I'm giving you a sentence, so that will help you differentiate between the two. Like, I reached the station in time. You write it down, I'm dictating it. I reached the station in time. मैं वक्त पे स्टेशन पहुंचा. When you say in time and when you say on time, so what is the difference? In time means वक्त से थोड़ा पहले, like the train was scheduled to arrive at 7 and you reach there at 6:30, so you reach in time. In time means क्या हो गया? वक्त से पहले. I reached the station on time. Suppose 7 बजे ट्रेन आने वाली थी और अगर आप 7 बजने में 10 मिनट पे पहुँचते हो तो रीच ऑन टाइम, एन वक्त पे. At a time, I've told you, एक प्रयास में, एक एफर्ट में. Now in a week, within a week. अब इसमें भी डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए. When you say in a week, it means in 7 days, exactly 7 दिनों में. In an hour means 60 मिनटों में, means exactly 1 घंटे में. But if you say within a week, it means एक वीक से पहले, वो 5 दिन हो सकता है, 4 दिन हो सकता है, 6 दिन हो सकता है, बट नॉट 7 days. तो विद इन अ वीक मतलब
एक वीक से पहले, विद इन एन आवर मीन्स 1 घंटे से पहले, इन अ वीक, इन एन आवर मीन्स एग्जैक्टली जितना समय दिया गया उसी में। नो एट का यूज़ हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, एग्जैक्ट टाइम, जैसे एट 7 PM। एट इज़ ऑल्सो यूज्ड विथ नाइट, जैसे एट नाइट, वी डोंट से एट इन नाइट, एट नाइट, बट मॉर्निंग में इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। टिल मीन्स हिंदी मीनिंग होता है इसका तक, ओके, टिल मीन्स तक, और ये प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम लिमिट को बताता है, वर्तमान या भविष्य की समय सीमा को। जैसे अगर आप कहते हैं अगले हफ्ते तक, टिल नेक्स्ट वीक, मंडे तक, टिल मंडे, रात 9 बजे तक, टिल 9 AM, उस समय तक के लिए वी यूज़ टिल देन, ओके, अनटिल देन नॉट यूज्ड, टिल देन। बाय देन फ्यूचर में यूज़ होगा। आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन टिल देन, बाय देन। टिल देन की मीनिंग क्या हुआ? उस वक्त तक। तो फ्यूचर के टाइम लिमिट के लिए आप टिल का यूज़ कर सकते हो, या प्रेजेंट लिमिट के लिए, ओके। टिल इज़ नेवर फॉलोड बाय अ कंप्लीट सेंटेंस। अक्सर इसमें एरर आते हैं, सो आई एम गिविंग यू अ क्लू, आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। टिल के बाद कभी कंप्लीट सेंटेंस नहीं आता, एक टाइम फ्रेज, नेक्स्ट वीक, मंडे, देन, 9 AM, ये सब आते हैं। अब बाई और टिल में फ़र्क क्या है? बिकॉज बाई का हिंदी मीनिंग भी है तक, तो ये शो करता है डेडलाइन, मतलब अगर आप समय की सीमा किसी को निर्धारित करके देते हो काम ख़त्म करने के लिए, नॉट बियॉन्ड दैट टाइम, तब आप टिल नहीं बाई यूज़ करते हो। जैसे गेट दिस वर्क डन लेटेस्ट बाय टुमारो, कल तक हर हाल में इस काम को ख़त्म करो, मीन्स ये काम टुमारो, कल से ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, तो दिस इज़ डेडलाइन। आप ये डेडलाइन खुद को भी दे सकते हो, दूसरों को भी। देन यू हैव टू यूज़ बाई। अब यहाँ पे आप टिल नहीं यूज़ कर सकते। आई शैल कंप्लीट द सिलेबस बाई दिस वीकेंड, इस हफ्ते के अंत तक मैं अपने सिलेबस को पूरा कर लूँगा। तो ये डेडलाइन आपने खुद को दिया। तो जहाँ डेडलाइन है, जहाँ उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, यू हैव टू यूज़ बाई। और उस समय तक हो चुका होगा आपको बोलना है तो बाई देन, और उस समय तक होता रहेगा तो टिल देन। दिस इज़ द डिफरेंस। अब अनटिल अनलेस, बोथ हैव द सेम मीनिंग, जब तक कि नहीं। तो डिफरेंस क्या है कि अनटिल टाइम प्लस कंडीशन के लिए यूज़ होता है, जबकि अनलेस सिर्फ कंडीशन यानी शर्त। नाउ लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। द मैच विल नॉट रिज्यूम अनटिल द रेन स्टॉप्स, जब तक बारिश रुक नहीं जाती है मैच फिर से शुरू नहीं होगा। तो until means what? जब तक कि नहीं, and until is always followed by a complete sentence. Just see, the match will not resume until the rain stops. तो until के बाद क्या आ रहा है? The rain stops. That means a complete sentence. Okay. अब जैसे मैच आज होनी है, तो बारिश भी तो आज ही रुकनी चाहिए। तो although time is not given, बट वी एज्यूम, आप मान के चलते हैं कि इसमें टाइम का लिमिट छिपा हुआ है। बट अनलेस में क्या है कि ओनली कंडीशन इज देयर, ओके। सो लेट अस सी एन एग्जांपल in which we are making use of unless. Like, unless one completes graduation, one isn't eligible for this job. जब तक कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन नहीं कर लेता वो इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। अब ये कंडीशन है, ग्रेजुएशन कोई आज कर सकता है, कोई अगले महीने, कोई 1 साल बाद, कोई 5 सालों बाद। तो देयर इज़ नो टाइम लिमिट एज सच, और इट्स कंडीशन, ग्रेजुएशन होना एक कंडीशन है, तो वी हैव टू यूज़ अनलेस। नॉर्मली लोग अनटिल या अनलेस कोई भी यूज़ कर लेते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बट अगर इस तरह के क्वेश्चंस में फिलर्स आ जाते हैं एंड बोथ ऑप्शंस आर गिवन, अनटिल इज ऑल्सो गिवन, अनलेस इज ऑल्सो गिवन, तो यू हैव टू गो फॉर दिस लॉजिक कि टाइम प्लस कंडीशन, तो अनटिल, ओनली कंडीशन अनलेस, राइट।
और ये कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ होते हैं। तो अनटिल अनलेस बिकॉज नेगेटिव शब्द हैं, जब तक कि नहीं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अनटिल अनलेस के बाद नॉट कभी भी नहीं आएगा। Now let us look at this example. The earth will keep revolving round the sun dash the universe lasts. अब ये क्वेश्चन एक बार एसएससी में पूछा गया था एंड द ऑप्शंस आर टिल अनटिल अनलेस एज लॉन्ग एज। तो सबसे ये एक्चुअली स्पॉटिंग एरर में आया था, बट आई हैव नॉट गिवन इन स्पॉटिंग एरर। तो आई लीव इट टू यू, यू जस्ट गिव इट अ ट्राई। तो आप लोग को जो बता पाओगे आप लोग व्हाट्सएप में डालना ये, एंड आई लेट यू नो द एक्सप्लेनेशन। मीनिंग स्टिल तक हो गया, अनटिल मीन्स अनटिल अनलेस हैव द मीनिंग जब तक कि नहीं, एज लॉन्ग एज का मीनिंग है जब तक। सो यू गिव इट अ ट्राई। ओके, नेक्स्ट प्रपोजिशन जो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे, दैट इज बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो बिसाइड का मतलब है कि बगल में या बाय द साइड हो, और बिसाइड्स का मतलब है कि अलावा, इन एडिशन टू। अब इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई बार ये फिलर्स में भी आता है और कई बार ये स्पॉटिंग एरर में भी आता है। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल. Besides the medical practitioners, other sections of the society are also toiling hard to combat the spread of COVID-19. मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के अलावा समाज के अन्य वर्ग भी काफ़ी कठिन परिश्रम कर रहे हैं कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए। तो के अलावा बिसाइड्स का मीनिंग, तो मे बी यू गेट अ ब्लैंक ओवर हियर, और एट टाइम्स यू ऑल्सो गेट स्पॉटिंग एरर। तो यहाँ पे बिसाइड्स की जगह बिसाइड दिया होगा। दूसरा, माई हाउस इज़ बिसाइड द स्टेट बस डिपो, मीन्स मेरा घर स्टेट बस डिपो के बगल में है। तो beside cannot replace besides, both have different meanings. Now next is above and over. तो ऑलमोस्ट दोनों के अर्थ होते हैं ऊपर, बट फ़र्क क्या है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हो और आपकी पहुंच से बाहर हो तो बियॉन्ड रीच हो तो ओवर यूज़ होगा, और ऊपर है बट थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप उसे छू सकते हैं तो अबव होगा। लाइक द हेलीकॉप्टर hovering over rims sprinkled flower petals upon the health workers. तो over is used because ये हेलीकॉप्टर काफ़ी ऊंचाई पे था और ये पहुंच से बाहर था, and that is why we are using over not above, because above यूज़ करने से it has a different meaning. तो क्या मीनिंग होगा? Now look at this one. Given above are some cartoons for which you have to write captions. Above means बहुत से थोड़ी सी दूर, आप छू सकते हो, आपके बुक में है या आपके क्वेश्चन पेपर में है कुछ कार्टून्स जिसके लिए आपको कैप्शंस लिखने हैं, तो ये आपकी पहुंच के अंदर है। ओके, तो above and over। कभी कभी above over का यूज़ हम स्तर या लेवल बताने के लिए भी करते हैं, that I'll discuss at the end. अब आते हैं अंडर, बिलो, बीनीथ, अंडरनीथ। तो ये तीनों सारे वर्ड्स का मीनिंग है के नीचे। फ़र्क क्या है कि अंडर का यूज़ जब आप करते हैं तो फिज़िकल टच नहीं है, बिलो मतलब थोड़ी दूर पे है बट यू कैन टच इट, और बीनीथ, अंडरनीथ जब दो चीज़ों के बीच टक इन करके रखा जाता है, डाल दिया जाता है जो चीज़ों के बीच, तो ईदर वी यूज़ बीनीथ और अंडरनीथ। The cat is sitting under the chair. You cannot use below the chair. Under the chair because वो chair के नीचे बैठी है, but no physical touches between the chair and the cat. Given below are some sentences in which you are supposed to find out errors. Okay? नीचे कुछ वाक्य दिए हैं जिनमें आपको एरर ढूंढने हैं। तो ये बिलो भी वही कंडीशन है अबव की तरह, और सॉरी हाँ यस, अबव की तरह अगर ऊपर है और आप छू सकते हो, आपके विद रीच के अंदर है, तो अबव ऊपर के लिए, बिलो नीचे के लिए। द मदर पुट अ ब्यूटिफुल गिफ्ट अंडरनीथ और बीनीथ हर सन्स पिलो।
माँ ने अपने बेटे के तकिए के नीचे खूबसूरत गिफ्ट रखा। तो आप जब टक इन करके दो चीज़ों के बीच कोई चीज़ को डालते हो तो ईदर वी यूज़ अंडरनीथ और बीनीथ. ओके. Below and above also show level. This I was discussing. So as far as knowledge is concerned, my brother is far above me. If I say so, जहाँ तक ज्ञान की बात है मेरा भाई मुझसे स्तर में काफ़ी ऊपर है तो above. अगर वो स्तर में मुझसे नीचे है तो it's below. Okay. Now you just go through all these once again and tell me, इज़ इट कॉम्प्रहेंसिबल. आपको समझ आ रहा है ये या नहीं. मे बी थोड़ी सी कुछ विजिबिलिटी में अगर दिक्कत है तो देन ऑल्सो यू लेट मी नो सो दैट आई कैन कीप सेंडिंग यू मोर ऑफ दीज वीडियोज़. एंड जो नए बैच के स्टूडेंट्स हैं फॉर देम आई विल बी सेंडिंग यू वीडियोज़ ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ओके.